Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study community development program. So let's start the lecture and understand what is community development program. See, community development program is such umbrella program for the overall development of rural society in which coordination is established between stakeholders of society, economic resources and political leaders. Also, coordination and cooperation between different schemes, policies and programs of central government and state government is established, and through public participation. Through public participation, these different schemes or programs are launched and implemented so that overall development of rural society could be achieved. Right? In other words, we can say that community development program refers to a method or a system by which efforts are made for the overall development of rural society by establishing coordination between the stakeholders of rural society, economic resources, nature of leadership and public participation. Right? And in community development programs, major or most initiatives are taken by the community. क्योंकि अगर कम्युनिटी के बाद कम्युनिटी के द्वारा ही इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे तो इससे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एंड थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन द अचीवेबल गोल्स आर अचीव्ड. Also, the objective of CDP is not to be limited to interest of any particular class, but the objective is to raise the standard of living of the entire community. Right? And we can understand community development program through planning commission. Right? So according to planning commission, it is a self-funded, right? It is a self-funded, self-sufficient program organized and implemented by the villagers themselves. The government only provides technical guidance and financial assistance. Right? So this was community development program. Now we will see achievements of community development program. Right? And this may be asked as a 11 marker question. What are the achievements of community development program? या फिर इसके जो सब सेक्शन है वहां से 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं. राइट? इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि जो है रूरल डेवलपमेंट में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किस तरीके से मदद की है. राइट? या हाउ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प फॉर द रूरल डेवलपमेंट, और व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू अपग्रेडिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन में बी आस्क्ड थ्रू दिस टॉपिक. सो नाउ वी विल स्टडी द अचीवमेंट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट program. See, after the implementation of community development program in India, there is a major changes in rural society, and after independence for rural development, this program has been launched as a separate program or independent program. So this was separate and independent program for the rural development, right, and development of rural society. And over the period of time, different schemes, different programs were launched under the community development program. So what are the achievements, right, and what are the successes or what are the achievements of this program? We will see through these points. The first is integrated rural development program. See, integrated rural development program was launched under community development program, and this program is the most important. So this is the most important program to be completed under community development program, because before the launch of this program, ग्रामीण एरिया में विकास के लिए there was a small farmers development agency. राइट? तो फार्मर के वेलफेयर के लिए क्या थी? देयर वाज, राइट, फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स देयर वाज अ स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, एंड ड्रॉट एरिया प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड. तो ग्रामीण क्षेत्रों में
फार्मर की मदद के लिए, फॉर द हेल्पिंग ऑफ और वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, एंड देयर वाज अ प्रोग्राम, ड्रॉट एरिया प्रोग्राम फॉर द रूरल डेवलपमेंट। बट लेटर इट वाज अंडरस्टूड कि इन दोनों प्रोग्राम की मदद से रूरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। देयरफॉर एक सिग्निफिकेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, और वो प्रोग्राम कौन सा था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। सो द एम ऑफ इंप्रूविंग, right, the aim of improving rural area, a comprehensive program of rural development was started in 1978-79, right, और उस प्रोग्राम का नाम ही क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। तो आपको पहली चीज तो ये याद रखनी है कि जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इट हैज बीन लॉन्च्ड इन 1978-79, राइट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसीलिए कई बार इसको इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस क्या था? राइट, दिस प्रोग्राम हैज एन इंपॉर्टेंस प्लेस रिड्यूसिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसने रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आल्सो रिड्यूस्ड पॉवर्टी, राइट, एंड इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ विलेज। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया, पॉवर्टी को कम किया, और द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ विलेजर्स को जो है अपग्रेड किया, राइट। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। सो वी कैन से दैट मोर देन, राइट, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के समय की, सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वर इंगेज्ड इन रूरल एक्टिविटीज, और वी कैन से दैट इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट सीजनल होता है, राइट, जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, राइट, या जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जो निनाई गड़ाई का समय होता है, उस समय पर ही जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, राइट। और अगर हम देखें तो जो पूरा थ्रू आउट द ईयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कोई भी ऑप्शंस होते ही नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि इंडिया में 75% पॉपुलेशन जो है उस समय पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। और एग्रीकल्चर में दो तरीके के जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो पाए जाते हैं। फर्स्ट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड बिकॉज ऑफ द ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ था, इसीलिए रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना was a difficult task. इसीलिए in 1981, right, in 1981 the National Rural Development Program was started under Community Development Program, right, ताकि रूरल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सके। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड additional employment opportunities to the farmers in spare time, to provide advanced agricultural equipment and to improve the economic condition of the villagers, right। और इसके लिए जो 6th 5-year प्लान था उसमें 1.620 जो करोड़ रुपए थे वो स्पेंड किए गए थे। तो रूरल एरियाज में जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट हो सके, एडवांस एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लिए, और इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो सकें, इसके लिए 6th 5-year प्लान में 1.602 करोड़ रुपए जो अलॉट किए गए थे ताकि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सके। वहीं अगर हम देखें तो जो 7th 5-year प्लान था, राइट, इन 7th 5-year प्लान अ न्यू employment generation program was launched in India in 1989 and which was जवाहर रोजगार योजना। अब जो जवाहर रोजगार योजना थी, राइट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। अंडर जवाहर रोजगार योजना, right, it was decided that at least 100 days of employment would be provided for landless farmers and members of the family of very poor people,
राइट। तो जो मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ पुअर हैं, राइट, और जो लैंडलेस लेबर है या लैंडलेस जो फार्मर हैं, उनको 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और इस तरीके से या हम कह सकते हैं कि थ्रू दिस स्कीम, राइट, लार्ज नंबर ऑफ पुअर, राइट, लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल और पुअर सिटीजन ऑफ इंडिया गॉट द एम्प्लॉयमेंट, राइट। और जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिला तो इससे उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी क्या हुई, उन्नति हुई। लेटर अगर हम देखें तो बाद में अगर वर्तमान समय में भी रूरल डेवलपमेंट के लिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल मनरेगा, राइट, मनरेगा प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इस प्रोग्राम के तहत वर्तमान समय में जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज में प्रोवाइड कराया जा रहा है। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर प्रोग्राम फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज, राइट। सी इन इंडिया द एग्रीकल्चर इज कंसर्न, इन इंडिया एग्रीकल्चर को मानसून का जुआ कहा जाता है, राइट। और उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंडियन कल्चर इज लार्जली बेस्ड ऑन मानसून, राइट। इफ मानसून इज स्ट्रॉन्ग देन डेफिनेटली देयर वुड बी इनफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, परंतु यदि मानसून वीक होगा तो उससे प्रोडक्शन भी कम होगा, और हो सकता है कि अगर मानसून बहुत ही ज़्यादा वीक हो तो उससे ड्रॉट भी जो है अकर हो सकता है, राइट। अब if there would be a drought situation then definitely there would be food shortages, राइट। इसीलिए हमारे देश में ड्रॉट को रोकने के लिए जो जितने भी ड्रॉट प्रोन एरियाज थे वहां पर ऐसे मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए ताकि जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको ओवरकम किए जा सके, राइट। जैसे वहां पर जो फार्मर्स को इन्फॉर्म किया गया, फार्मर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इवन इन लेस वाटर। तो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं वहां के फार्मर्स लेस वाटर में या कम से कम इरिगेशन से फसलों को उगा सके, राइट। इट वाज इन्फॉर्म्ड, राइट, द मैक्सिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इंक्रीज इन प्लांटेशन, राइट, एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस बाय डेवलपिंग गुड ब्रीड ऑफ एनिमल्स, राइट। तो एक तरीके से जो इरिगेशन मेथड्स हैं वो अपग्रेड की गई, प्लांटेशन को अधिक से अधिक किया गया और जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको फोकस किया गया ताकि जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं वहाँ की सिचुएशन को ओवरकम किया जा सके। फोर्थ इज डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। सी अंडर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1977-78 डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। क्योंकि जो डेजर्ट एरिया है उसमें अगर इफेक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जाए तो उससे डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सकता है। यदि हम इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लेंगे तो उससे डेजर्टिफिकेशन और क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए 1977-78 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ताकि डेजर्टिफिकेशन को कम किया जा सके और उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए इट वाज इम्प्लीमेंटेड टू प्लांट मोर एंड मोर ग्रीनरी। जहां पर जो ड्रॉट एरिया वहां पर अधिक से अधिक पेड़ों को ग्रीनरी किया जाएगा, राइट। वेरन एंड रग्ड एरियाज, राइट, फाइंड एंड यूज वाटर रिसोर्सेज, इनकरेज ट्यूबवेल्स बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेजेस एंड डेवलप लाइक स्टॉक एंड गार्डन्स। तो जो जितने भी डेजर्ट एरिया थे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, राइट। जो लाइव स्टॉक था उसको डेवलप किया गया ताकि एक तो जो प्लांटिंग ग्रीनरी है उससे डिजर्टिफिकेशन कम होगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी और जो लाइव स्टॉक है उसके माध्यम से जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड प्लान फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। सी जो इंडिया के ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पर ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव मेजर्स लिए गए। फॉर एन एग्जांपल आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा, राइट। एंड थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट, वहाँ पर या जहाँ पर अधिक से अधिक ट्राइब्स रहती थी, राइट, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट और जो है एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए तथा
को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर इफेक्टिव जो है इनिशिएटिव्स लिए गए। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, द ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, इन ट्राइबल डोमिनेंट एरियाज, राइट, पीपल वर असिस्टेड इन गेटिंग लोन्स, तो लोगों को लोन्स दिया गया किसके लिए? परचेस ऑफ कैटल, लैंड रिक्लेमेशन, राइट, रिपेयर ऑफ बुलक कार्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड वर्क्स। तो इनके लिए एक तो लोन्स प्रोवाइड किए गए, साथ ही साथ जो है हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड वर्क के लिए भी जो है गवर्नमेंट ने असिस्ट किया। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फॉरवर्ड प्लान ऑफ हिल डेवलपमेंट एरिया, राइट। तो जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर करना उतना आसान नहीं होता है, राइट। देयरफॉर, राइट, हमारे इंडिया में जो भी हिली एरियाज थे वहाँ के फार्मर को असिस्ट करने के लिए या उनकी स्थिति को और अच्छा करने के लिए फॉरवर्ड प्लान ऑफ हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया एंड दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश, राइट, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु अंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के माध्यम से, राइट, इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हिली रीजन के फार्मर्स हैं, राइट, उनके स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए और उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है कई फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी, राइट। इनिशियली इसको 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था और इसका ड्यूरेशन भी 5 ईयर रखा गया था, बट लेटर दिस प्रोग्राम वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 6th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट इज न्यूट्रियस डाइट प्रोग्राम। See, through community development program, the overall development is achieved, right? And overall development can be achieved only when the health facilities would be up to date। और उसके साथ ही अगर लोगों को जो मॉलन्यूट्रिशन की समस्या है तो उसके लिए भी यहाँ पर इफेक्टिव मेजर्स इंप्लीमेंट किए जा सके। और मॉलन्यूट्रिशन से निपटने के लिए न्यूट्रियस डाइट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, राइट। एंड थ्रू न्यूट्रियस डाइट प्रोग्राम इट वाज ऑब्जेक्टिव दैट कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पर न्यूट्रियस डाइट के माध्यम से माइल न्यूट्रिशन के जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम किया जाएगा और जो हेल्थ है उसको अपग्रेड किया जाएगा। एंड दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड यूनिसेफ, राइट। और इस प्रोग्राम के तहत जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं वहाँ पर स्कूल चिल्ड्रन को जो है डाइट दी जाती है। तो एक तरीके से मिड डे मील जो स्कीम है वो हम कह सकते हैं कि मिड डे मील स्कीम के माध्यम से ही और थ्रू डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से जो रूरल एरियाज हैं वहाँ के लोगों को एवं जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वन टाइम न्यूट्रियस मील है वो प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, राइट। एनिमल हस्बेंड्री, सी एनिमल हस्बेंड्री इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर बिकॉज जो फॉडर है फॉडर को आसानी से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से प्राप्त किया जा सकता है और एनिमल एक्टिविटीज को एग्रीकल्चर के साथ में आसानी से इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, राइट। अब एनिमल हस्बेंड्री के लिए जरूरी है कि जो अपग्रेडेड या जो हाई क्वालिटी ब्रीड है वो फार्मर्स के पास में होना चाहिए, राइट। सो थ्रू एनिमल हस्बेंड्री स्कीम गवर्नमेंट ने जो गुड ब्रीड्स एनिमल हैं या जो अच्छी ब्रीड्स हैं वो फार्मर्स के लिए अवेलेबल कराए एंड थ्रू द हाई क्वालिटी ब्रीड्स जो है एनिमल्स को डिफरेंट प्रोग्राम के माध्यम से जो है फार्मर्स के लिए प्रोवाइड कराए गए। नेक्स्ट हो जाएगा प्रमोशन ऑफ वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशंस। सी overall development of rural society can be achieved only when there is a high public participation। और पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा इसके लिए वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इफेक्टिव तरीके से कार्य कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है रोल ऑफ NGOs और वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक पूरे लेक्चर में समझेंगे, राइट। ओवरऑल मैं अगर आपको बताना चाहूं सो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज को लॉन्च करती है
राइट। NGOs प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पीपल, राइट। और NGOs उस स्कीम में, पॉलिसीज में जो कुछ भी लूप होल्स होते हैं, डिफिकल्टीज होते हैं, राइट, उनको दूर करने के लिए भी गवर्नमेंट को क्या करते हैं, कई बार हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो महिला मंडल है या फिर जो युवक मंडल है, राइट, उनके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है, राइट। बेनिफिट्स क्या क्या है किस पॉलिसी के, ये बताए जाते हैं, राइट। और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन अधिक से अधिक हो सके। फॉर दैट गवर्नमेंट हैज मेड अ रूल फॉर सिंप्लीफाइंग, राइट, गवर्नमेंट हैज सिंप्लीफाइड द रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन या जो NGOs हैं वो आसानी से एस्टेब्लिश हो सके। साथ ही साथ गिविंग ग्रांट्स फॉर मेंटेनेंस, राइट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और साथ ही साथ ऑब्जर्विंग देयर फंक्शंस, राइट, और उनको जो है गिविंग इंस्पिरेशन अवार्ड्स टू महिला मंडल्स एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स, राइट, ताकि जो NGOs हैं उनकी संख्या बढ़ सके और इससे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अच्छे से जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हो जाएगा, राइट। सो हेल्थ इज मच रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, राइट, और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराया गया। इसके साथ ही अवेयरनेस को भी बढ़ाया गया, राइट, और अवेयरनेस को बढ़ाया गया और जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं और डिफरेंट जो हेल्थ पॉलिसीज हैं उनके माध्यम से हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई गई। साथ ही साथ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, जो है न्यूक्लियर फैमिली हम कह सकते हैं कि स्मॉल साइज जो फैमिलीज हैं, राइट, स्मॉल साइज फैमिलीज हैं, राइट, उनको स्मॉल साइज फैमिलीज को अचीव करने के लिए भी लोगों को अवेयर किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो जाएगा, राइट। सो एजुकेशन इज मच रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि एजुकेशन से ही एम्प्लॉयमेंट के नए जो है ऑप्शंस जनरेट होते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन से अवेयरनेस आती है, एजुकेशन से स्किल डेवलपमेंट होता है और स्किल डेवलपमेंट से जो है रूरल पीपल है कैन इजीली गेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। और इसके लिए महिला मंडल है या कृषक दल है या युवक मंगल दल है, राइट, इनको इस्टेब्लिश किया गया, राइट। अब जो महिला मंडल है या कृषक दल है या जो युवक मंगल दल हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो रूरल एरियाज में एजुकेशन के स्प्रेड करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इसके साथ ही जो प्रैक्टिकल एजुकेशंस है उसको फोकस किया गया। साथ ही साथ एग्रीकल्चर की जो इन्फॉर्मेशन है और हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे बनाया जा सकता है और हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे मार्केट में सेल किया जा सकता है, इसकी भी जो है ट्रेनिंग जो है गवर्नमेंट एरियाज में प्रोवाइड कराई गई, राइट। इसके साथ ही जो ब्लॉक लेवल्स पर, राइट, ब्लॉक लेवल्स पर जो रूरल लिटरेसी है उसको बढ़ाने का प्रयास भी किया गया। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम द विलेजर्स, राइट, जो अपार्ट फ्रॉम विलेजर्स थ्रू सेमिनार्स कैंपस आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड फॉर द स्कूल टीचर्स, पंचायत मेंबर्स और रूरल यूथ। तो रूरल यूथ, पंचायत मेंबर्स और स्कूल टीचर्स को भी ट्रेन किया गया ताकि वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट हो जाएगा एग्रीकल्चरल वर्क हो जाएगा, राइट, फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, राइट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए द न्यू टेक्निक्स मस्ट बी अप्लाइड। फॉर एन एग्जांपल irrigation methods should be up to date or technically advanced, right. High variety seeds should be used, right. उसके साथ में जो मैकेनाइजेशन है वो इम्प्रूव होना चाहिए, राइट। Therefore, through community development program for the development in agriculture, जो वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, कैनाल्स हैं, उनको डेवलप किया गया so that जो एग्रीगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको विलेज टू विलेज जो है पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी जो है इंक्रीज किया गया,
साथ ही साथ जो हाई वैरायटी सीड्स हैं या जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं और जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड कराए गए ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है बढ़ सके। साथ ही साथ कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया और फार्मर्स को असिस्ट किया गया ताकि एग्रीकल्चर इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट हो जाएगा हेल्थ एंड क्या हो जाएगा, क्लीनलीनेस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रूरल एरियाज में फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज हेल्थ सेंटर्स वर एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरियाज, और उन हेल्थ सेंटर में मेडिसिन हैं, डॉक्टर्स हैं और जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं राइट उनको अरेंज किया गया। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में राइट इट वाज मैनेज्ड और द जो फैसिलिटीज़ है फॉर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबल कराई गई। साथ ही साथ जो इन्फेक्टियस डिसीज़ हैं उनके प्रिवेंशन के लिए भी इफेक्टिव जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ने लिए राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज राइट, रूरल एरियाज में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसने मेजर रोल प्ले किया है राइट। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जितने टॉपिक की हमने यहाँ पर बात की है उनके अलावा भी थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट, और इसके लिए जो क्रेडिट अरेंजमेंट फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल कराई जा रही हैं। साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्री को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इंटरटेनमेंट सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं सो दैट ओवरऑल डेवलपमेंट्स ऑफ द रूरल सोसाइटी कुड बी अचीव्ड राइट। ओके, now we will see impact of community development program on rural life। तो impact, what is the impact, और we can say that कि जो community development program है उससे rural life में क्या क्या changes आए हैं। तो here 5 marker question may be asked in the examination, so we will see impact of community development program on rural life। first क्या हो जाएगा, democratic decentralization। हम देखते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1952 एंड उसके निरीक्षण के लिए जो है बलवंत राय मेहता कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड। आफ्टर दैट बलवंत राय मेहता कमेटी ने हमारे देश में 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिश के लिए रिकमेंडेशन दिया था। लेटर लक्ष्मी सिंघवी कमेटी ने फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए रिकमेंडेशन किया। इस तरीके से अगर हम देखें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से ही थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है राइट। सो हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइडेड अ वे फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीटेड इन 1993। सेकंड क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। सो मैनी पॉलिसीज वर इम्प्लीमेंटेड, फॉर एन एग्जांपल जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज किया गया, एग्रीकल्चरल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कार्य किया गया, तो उससे रूरल एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ राइट। रूरल पीपल के एटीट्यूड्स में चेंज हुआ और उस एटीट्यूड में चेंज होने से वो अब जो है जो क्रिएटिव वर्क्स हैं या हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो है काम कर रहे हैं। फिर हेल्थ एंड क्लीनलीनेस जो फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की गई, फिर लिटरेसी रेट जो है इम्प्रूव हुआ है। साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से राइट अवेयरनेस अवेकनिंग थ्रू कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से अवेयरनेस स्प्रेड हुई है, अवेकनिंग हुई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल जो सोशल मीडिया है या हम एक तरीके से कहें कि एग्रीकल्चर में जो मॉडर्न एक्टिविटीज़ हैं या मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फिर जो रूरल लीडरशिप है वो इम्प्रूव हुई है राइट। फिर चाइल्ड वेलफेयर पर जो फोकस किया जा रहा है और मैटरनिटी जो बेनिफिट हैं उसको भी फोकस किए जा रहे हैं राइट। सो दीज वर द इम्पैक्ट ऑफ community development program on rural life। okay, now we will see what are the drawbacks or failures of community development
program, right? And it may be asked also as a 5-marker question. So we will see the drawbacks or failures of community development program one by one. See, the first is the nature of community development program is bureaucratic, right? और bureaucratic है तो there must be hierarchy, और इसी वजह से all decisions are communicated from higher level to lower level. और इससे क्या होता है कि जब एक हायर ऑफिसर कोई भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है, सो हायर ऑफिसर के पास में जो ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही कम होती है, राइट? आप देखिए, लोअर लेवल ऑफिसर वुड हैव अ रियल ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन। तो एक अगर लोअर लेवल का ऑफिसर अगर कुछ भी प्लान को एग्जीक्यूट करेगा तो उसके पास में जमीनी इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर लोअर लेवल टू हायर लेवल क्या होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी, तो उससे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा। परंतु कई बार ऐसे ऑफिसर्स, राइट, दे डिडंट विजिटेड विलेज इवन वन टाइम, वो लोग रूरल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी फॉर्म करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? और इस वजह से जो पॉलिसीज होती हैं वो कई बार इफेक्टिव नहीं होती हैं, राइट? तो द पहला ड्रॉबैक हो जाएगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम is in the nature of bureaucratic, right? Therefore decisions are communicated through higher level to lower level, और उससे because of the lack of ground level information कई बार जो प्लान है ना तो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होता है और ना ही फॉर्मुलेट हो पाता है। सेकेंड, there is a lack of implementation, राइट? तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जो जनरल पब्लिक है, राइट, द परसेप्शन ऑफ जनरल पब्लिक आल्सो डज नॉट चेंजेस। जनरल पब्लिक यही सोचती है कि ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो जनरल पब्लिक की थिंकिंग प्रोसेस है, एटीट्यूड है, वो भी चेंज नहीं हो पाता है, और दूसरी वजह से इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाता। तीसरी चीज क्या है कि इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनी प्रोग्राम्स और मैनी डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर कोऑर्डिनेटेड, राइट? और इट इज आल्सो वी कैन से दैट मिस्टेक, क्योंकि कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जब किसी एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लब किया जाता है, तो उसमें भी कई डिपार्टमेंट्स में इंटरनल राइवलरी होती है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ द स्टेटस, राइट, प्रेस्टीज, और बिकॉज ऑफ द राइवलरी जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्रोग्राम और पॉलिसी का, वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज there is much doubling of functions in the department of administrative, right? एक ही प्रोसेस को जब कई हायर ऑफिशियल्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, परमिट किया जाता है, तो उससे एक और जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोड है वो बढ़ता है। इसके साथ ही जो डिविजन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, वो भी क्या होती है, इससे चेंज होती है, और कुल मिलाकर इससे वर्कलोड बढ़ता है, डिवीजन ऑफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी कम होती है, और इससे जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है वह भी क्या होता है, घटता है, राइट? उसके साथ ही हम ये कहें कि देयर इज अ पॉवर्टी एट प्रेजेंट टाइम इन रूरल एरिया, सो वी कैन से दैट दिस प्रोग्राम हैज फेल्ड टू कंप्लीटली इरेडिकेट रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। साथ ही साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक जो है अपग्रेड नहीं हो पाया है। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज आर स्टिल इन बैड सिचुएशन, या हम कह सकते हैं कि देयर इज लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, राइट? तो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज नॉट अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली। तो इसकी जो कंप्लीटली या कंप्लीट जो सक्सेस है वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए, राइट? सो नाउ वी विल सी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन 1952 एंड दिस इज 2022, राइट? तो वी कैन से दैट देयर हैज बीन 17 years, राइट? सो देयर हैज बीन 17 years, तो 17 ईयर से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। डिस्पाइट दिस, थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम
जो एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या जो डेवलपमेंट है रूरल एरियाज़ का, वह अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक उसको बहुत पहले ही पहुंच जाना चाहिए. सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. Right? So this may be asked as a 5-marker question. So we will see the reasons for failure of community development program one by one. The first is administrative failure. Right? हमने देखा है कि जो decisions are made higher level to lower level. Right? उस वजह से किसी भी पॉलिसीज को या प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करने में और इम्प्लीमेंट करने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है वो रहा है. दूसरी चीज हम अगर देखें, सो एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ हायर लेवल, राइट, डू नॉट वांट टू विजिट द विलेज लेवल, राइट, डू नॉट वांट टू विजिट द विलेजेस. तो जब तक हायर ऑफिशियल्स जो है विलेज लेवल पर विजिट नहीं करेंगे तब तक वो एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे. राइट, सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, राइट, सो बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स मैनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स could not be implemented or formulated properly, और इसकी वजह से भी ये प्रोग्राम फेल हुआ है. द सेकेंड, लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स, राइट, और इफेक्टिव कम्युनिकेबल चैनल्स होने की वजह से जो ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन है दैट कुड नॉट बी रीच्ड एट द हायर लेवल, और इस वजह से हायर लेवल और लो लेवल जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन ना होने की वजह से भी जो है कई बार इफेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. देन इनडिफरेंस टू द रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स, राइट, देयर आर मेनी कल्चरल फैक्टर्स विच आर प्रिवलेंट इन रूरल सोसाइटी, और जब तक उनको हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे या थ्रू कल्चरल फैक्टर्स जो हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी कितनी ही अच्छी योजना क्यों ना हो वो अमल में नहीं लाई जा सकती है. फॉर एन एग्जाम्पल, बाल विवाह हो जाएगा, चाइल्ड मैरिजेस हो जाएगा, राइट, चाइल्ड मैरिजेस हो जाएगा, या फिर जो है अबॉर्शन हो जाएगा, राइट, इनफेंटिसाइड हो जाएगा. तो इन सभी समस्याओं को जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से और कल्चरल अवेयरनेस के माध्यम से ही कम किया जा सकता है. देन लैक ऑफ क्वालिफाइड लीडर्स, राइट, लैक ऑफ ट्रेंड पर्सन्स, राइट, देन लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. तो पब्लिक पार्टिसिपेशन का ऑब्जेक्टिव जरूर रखा गया था लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा हो ही नहीं पाया है, राइट, अच्छे लीडर्स जो हैं वो आए ही नहीं हैं, इस वजह से प्रॉपर तरीके से जो है पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन नहीं हो पाया है. देन लैक ऑफ इनिशिएटिव ऑफ रूरल पीपल. देन जो ग्राम सेवक था, राइट, मैनी जो ग्राम सेवक को जो है वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा था बिकॉज देयर वाज अ वाइड स्कोप ऑफ वर्क फॉर द ग्राम सेवक, राइट, इसलिए वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी को फोकस नहीं कर पाया. देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एट डिफरेंट लेवल, एट पंचायत लेवल, देन स्टेट लेवल, देन सेंट्रल लेवल. देन लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूरल पीपल इन प्लानिंग, राइट, ये भी यहाँ पर क्या है बिगेस्ट जो हो जाएगी हम कह सकते हैं कि रीजन है. व्हेन, राइट, अगर आप रूरल पीपल को ही पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में और फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपके पास में ग्राउंड लेवल जो है सिचुएशन या इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और ये भी एक कारण रहा है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेलियर के लिए. राइट, सो एट लास्ट वी विल सी द एवेल्युएशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. राइट, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एवेल्यूएशन क्या है, ये सीधा 11 मार्कर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एवेल्युएट द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 11 मार्कर क्वेश्चन, राइट, या फिर 5 मार्कर में भी आ सकता है एवेल्युएट द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो जब कभी भी एवेल्यूएशन की चर्चा होती है तो सीधी सी बात है हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की किसी भी पॉलिसी का जब हम एवेल्यूएशन करते हैं, राइट, तो सिंपली, राइट, वी हैव टू टेल द पॉजिटिव प्रोस एंड कॉन्स. तो जब हम इसका देखेंगे तो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है अच्छे से समझ चुके हैं. तो व्हाट वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड व्हाट आर द
वी कैन से दैट फेलियर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो उन दोनों को कंबाइन करके हम एवेल्यूशन कर सकते हैं, राइट। तो हम जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एवेल्यूशन करते हैं। देखिए, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट, there is a major cultural there is a major changes in rural areas, right। rural areas का development हुआ है, right। education है, health facilities है, employment opportunities हैं, are increasing day by day, परंतु the development pace is very slow in rural areas till now, right। the pace of developing which is prevalent in urban areas वो रूरल एरियाज में अभी भी नहीं है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो कल्चरल मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, उसकी वजह से जो है रूरल एरियाज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, परंतु अभी भी जो रेट या हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो अभी भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इसके साथ ही the basis the philosophy of this community development program was that no discrimination in the field of economic development and social justice। तो जो सोशल जस्टिस है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ही चाहिए, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि ये जब पॉलिसीज लॉन्च किए गए तो ये पाया गया कि 60% ऑफ देम या 60% जो बेनिफिशरीज थी दे वर रूरल एलाइट। मतलब जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल जस्टिस के पॉलिसीज या प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया गया और उनकी जो बेनिफिशरीज थे वो क्या है, 60% आर द रूरल एलाइट, विच मीन्स दैट जो 40% जो लोअर स्ट्राटा ऑफ रूरल एरियाज है उन तक अभी भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पहुंच पाया है। इसके साथ ही इट वाज स्टिपुलेटेड इन द प्रोग्राम दैट हाईएस्ट प्रायोरिटी वुड बी गिवन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल कम्युनिटी, क्योंकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा तो उससे एजुकेशन है, हेल्थ है, ये जो डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट हैं वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में अकर होंगे। परंतु अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी उतना नहीं हो पाया है, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ना हो पाने की वजह से या हम ये कहें कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो जाने की वजह से भी जो अदर डायमेंशंस हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, राइट, हाइजीन है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो फैसिलिटीज़ अभी भी जो है उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, और इसी सर्टेन अजम्पशंस की वजह से ही जो है ओवरऑल डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, या जो लोकल नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ऑल्सो देयर वाज अ ऑब्जेक्टिव फॉर अचीविंग द सपोर्ट ऑफ रूरल पीपल, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को इसमें इम्प्रूव किया जाना था, परंतु जो मोटिवेशन है और जो सपोर्ट है लोगों का मिलना चाहिए वो नहीं हो पाया है, राइट। इस वजह से भी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, राइट, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो उसको बढ़ावा मिला है। ये हम कह सकते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कम हुआ है और ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है वो और भी अधिक क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, राइट, इन द प्लेस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसी वजह से जितना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक नेचर होगा या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होगा उतना ही जो जेन्युइन बेनिफिट है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक और जहां पर जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स इसमें रखे गए थे, परंतु प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाने की वजह से जो है ओवरऑल डेवलपमेंट को अचीव नहीं किया जा सका। बट डिस्पाइट दिस थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट, दिस इज बीइंग एम्फेसाइज्ड, राइट। और क्या एम्फेसाइज किया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है और गाइडेंस है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा, द रोल ऑफ एनजीओस को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि रूरल डेवलपमेंट
हो सके। साथ ही साथ कई इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम्स हैं हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया और फ्यूचर में भी लॉन्च किए जाएंगे, ताकि जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, हेल्थ है, डेवलपमेंट है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कम्युनिकेशन है और जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो आ पाएँ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि community development program can be said to be such a method of socio-economic reconstruction and increasing self-reliance which includes socio-economic cultural characteristics, right? तो ये socio-economic reconstruction एक क्या हो जाएगी, मेथड है, right? जो कि सेल्फ रिलायंस को इंक्रीज कर रही है और हम कभी ना कभी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज है उसको अचीव कर लेंगे, राइट? सो दिस वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद न्यू टॉपिक. टिल देन, थैंक यू.